شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ آج کی جو گفتگو ہماری ہے، ہم لوگوں کا جو گروپ ڈسکشن ہے، اس کا میں نے عنوان، اس کا ٹاپک رکھا ہے اردو میں نشأت ثانیہ کی جستجو، اور انگلش میں انڈین مسلم رنائساں، ان سرچ آف این انڈین مسلم رنائساں ان 21st سینچری۔ یہ میں نے ڈسکشن رکھا ہے، اور اس کے اوپر جو فوکس ہمارا ہے وہ ہے کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز فار گورنمنٹ اینڈ جوڈیشل سروسز ان اتر پردیش۔ اسی کے سلسلے میں یہ آن لائن ڈسکشن آپ سے اس وقت شروعات ہوئی ہے۔ آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ یہ جو رنائساں ہے یا نشأت ثانیہ ہے، اس کو ہندی میں کہتے ہیں نوچیتنا یا پنرجاگرن۔ زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا 1997 میں قائم ہوئی تھی، اور اب اس وقت تقریباً 35-40 ادارے اس کے چل رہے ہیں جگہ جگہ۔ اس میں ایک ہے امپاورمنٹ کے تعلق سے سر سید کوچنگ اینڈ گائیڈنس سینٹر۔ یوزولی ہم کام اب تک سول سروسز کا کرتے رہے ہیں دلی سے، تو اس کی یونٹ لکھنؤ میں قائم کی جا رہی ہے، بلکہ قائم ہو چکی ہے۔ تو اسی سلسلے میں آپ سب لوگوں کو تکلیف دی گئی ہے۔ اس یونٹ کے جو کنوینر ہیں وہ عتیق صدیقی صاحب ہیں، اور اس کے ممبرس میں فی الحال محمد جنید صاحب جو اسپیشل سیکریٹری ہیں یو پی گورنمنٹ میں، اور یاد علی صاحب۔ تو یہ عتیق صدیقی صاحب اور یاد علی صاحب دونوں لوگ سیکریٹریٹ سے ریٹائرڈ ہیں سینئر پوزیشن سے، اور محمد جنید صاحب ابھی بھی الحمدللہ وہاں پر ہیں۔ اور اس میں محمد عامر صاحب بہت ہائیلی کوالیفائڈ آدمی ہیں، وہ بھی لکھنؤ کے باشندے ہیں، وہیں مقیم ہیں، اور وہ ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہیں لکھنؤ یونٹ کے سر سید کوچنگ اینڈ گائیڈنس سینٹر۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ہم ذرا یہ دعا کر لیتے ہیں کہ عتیق صدیقی صاحب جو اس پورے پروگرام کے روح رواں ہیں، ان کا دیر رات کو میسج آیا تھا اور فون آیا تھا کہ پرتاپ گڑھ میں ان کی بڑی بہن کا انتقال ہو گیا کل رات کو۔ تو وہ وہاں پر گئے ہیں، اور ہم اللہ سے سب لوگ مل کر کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کی بہن کو، اور ان کو اور ان کے پورے خاندان کو صبر عطا کرے، اور ان کو ان کے جو ان کی ہمشیرہ صاحبہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات پر نوازے، آمین ثم آمین۔ لیکن انہوں نے کہا تھا عتیق صاحب نے کہ وہ پھر بھی بیچارے کوشش کریں گے تدفین کے بعد اگر ممکن ہوا تو وہ شاید جوائن کر لیں گے تھوڑی دیر میں۔ پروگرام سارا انہوں نے ہی آرگنائز کیا ہے، اور یاد علی صاحب اور جنید صاحب نے مل کر کے۔ خواتین و حضرات، یہ سر سید کوچنگ اینڈ گائیڈنس سینٹر زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا کا 2007 میں قائم ہوا تھا، اور اس کے ابھی میں کچھ عرض کروں گا آپ سے اس کے اب تک جو کارکردگی رہی ہے، اور اس کی ہی یونٹ لکھنؤ میں یو پی کے لیے قائم کی جا رہی ہے۔ نیچے اس کا دفتر کا پتہ نیچے لکھا ہوا ہے، وکاس نگر میں۔ یہ کس کام کے لیے ہے؟ خاص طور سے جو سینٹر ہے لکھنؤ والا، وہ ہے فار کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز ان اتر پردیش فار گورنمنٹ اینڈ جوڈیشل سروسز۔ کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز ان اتر پردیش فار گورنمنٹ اینڈ جوڈیشل سروسز۔ تو اس سلسلے میں جو اصل مدعا ہے آپ لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے آج، وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ریچ آؤٹ۔ آپ کو ہماری مدد کرنی ہے پہنچنے کے لیے ان قابل امیدواروں تک۔ یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ میرا جو تجربہ ہے، بہت زیادہ تجربہ ہے الحمدللہ۔ 2007 سے تو یہ ہم سر سید کوچنگ اینڈ گائیڈنس سینٹر ہی چلا رہے ہیں۔ اس کے پہلے میں ذاتی طور کے اوپر، جب سے میرا خود کا سلیکشن ہوا ہے 1977 میں سول سروسز میں، تب سے میں لگاتار یہ ذاتی طور کے اوپر کام کرتا رہا ہوں، اور الحمدللہ اس کے بہت اچھے نتائج رہے ہیں۔ تو ہمیں
صحیح کینڈیڈیٹس کو ان کی شناخت کر کے ان تک پہنچنا، مختلف یو پی کے مختلف اضلاع میں ہر ضلع میں یہ کام ہونا ہے آپ صاحبان خواتین و حضرات کی مدد سے، کیونکہ یہ ایک باندھ لیجئے آپ گرا کہ جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے، اور ہم اب تک ہاتھ نہیں بڑھانے میں کوتاہی کرتے رہے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ بزم میں ہے یہاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی، اگر ہم نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تو ہم محروم رہ جائیں گے، ہم ڈپرائیو رہ جائیں گے۔ جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ تو یہ آج کی جو ڈسکشن کا جو مدعا ہے وہ ہاتھ آگے بڑھانے کا مدعا ہے، تاکہ ہم مینا ہمارا ہی ہو جائے۔ ایک علامہ اقبال کے ایک چھوٹے سے شعر سے اور شروعات کروں گا، یہ کہ آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، گرچہ ایک مٹی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی۔ حالانکہ جیون ایک مٹی کے شریر کے میں ہی چھپا ہوا ہے، لیکن وہ اپنی پہچان کروا سکتا ہے کس طرح؟ خود جیت کر۔ Though life is hidden in a limited frame of clay, it makes itself manifest through its power to conquer۔ ہمیں سے ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری کیپیسٹی دی ہے، کوئی کمی ہے ہی نہیں کسی میں الحمدللہ، بس اس کو پہچاننا اور اس کا استعمال کرنا ہے۔ علامہ اقبال کا ہی ایک فارسی کا شعر ہے، چیست بودن دانی ای مرد نجیب، از جمال ذات حق بردن نصیب۔ اے سجن آتما، تمہیں معلوم ہے کہ جینا کسے کہتے ہیں؟ جینا کہتے ہیں ایشور کی ابھیویکتی میں سے اپنا حصہ لے لینے کو۔ او نوبل سول، ڈو یو نو واٹ اٹ از ٹو لیو؟ اٹ از ٹو ٹیک یور شیئر آف دا بیوٹی آف گاڈ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ ہم نے تمہارے اندر اپنی روح پھونک رکھی ہے، انسان کے اندر۔ ہم میں سے ہر ایک کی بہت بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اس کی جو خصوصیات ہیں، جو صفات ہیں، جو کوالٹیز ہیں اللہ کی، ہمارے پیدا کرنے والے کی، اس میں سے کچھ ہم امبائب کرنے کی کوشش کریں اپنے اندر۔ قرآن کریم میں 11.7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یعنی کہ مقصد حیات کیا ہے، ہم نے انسان کیوں بنایا۔ عام طور سے میں اپنی آڈینس سے پوچھتا ہوں کہ انسان کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے، مقصد کیا ہے، تو یا تو کوئی جواب نہیں آتا، یا کچھ جواب آتا ہے کہ عبادت کرنے کے لیے اللہ کی۔ وہ صحیح ہے، عبادت کرنے کے لیے بنایا ہے، لیکن یہ کہ وہ جس عبادت کرنے کے لیے بنایا ہے اس کو یہاں ڈیفائن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے 11.7 میں، تاکہ ہم تمہارا امتحان لے سکیں کہ تم میں سے کون اپنے ذرائع کا، اپنے اثاثے کا، اپنے ایسٹس کا استعمال کر کے، ذاتی ذرائع کا استعمال کر کے دوسرے انسان کی زندگی زیادہ بہتر بنانے میں زیادہ اچھی طرح سے لگا ہوا ہے۔ یہ امتحان مقصد ہے، یہی مقصد حیات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو اس کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو تقدیر بدلی جا سکتی ہے، فیٹ کین بی چینجڈ۔ اس میں کوئی، یا آپ سوچیں گے کہ یہ جو ہے بس لفاظی کر رہا ہے آدمی، لیکن میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اس کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ مان لیجئے کہ 100 طرح کی تقدیریں ہیں پوری دنیا میں، اور اس میں سے جو رکشے والا وہ باہر سڑک کے اوپر اس وقت بھی ہم آپ گفتگو کر رہے ہیں، وہ پھٹا ہوا بنیان پہن کے پسینہ بہا کر کے 4 پیسے کما رہا ہے تاکہ شام کو اپنے بچوں کو کھانا کھلائے۔ تو اس کی تقدیر اگر نمبر 1 مان لیں، اور دنیا کا جو کامیاب ترین، جو سب سے زیادہ مالدار انسان ہے، اس کی تقدیر اگر ہم 100 مان لیں، تو اس پورے اسکیل میں اگر مان لیجئے کہ ہم اور آپ 26ویں یا 27ویں نمبر پر ہیں، تو تقدیر بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ کوشش کریں گے تو اپنی تقدیر 28، 29، 30، 40، 50، 60، 100 سے بھی اوپر کر سکتے ہیں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک میں کیپیسٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ ڈیسٹینی از فار لوزرس، اٹ از جسٹ اے اسٹوپڈ ایکسکیوز
to wait for things to happen instead of making them happen. हम में से हर एक को ये करना है अब कि हमें इंतज़ार नहीं करना है कि देखें क्या होता है, नतीजा आता है तो क्या निकलता है. हमें इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि हमें तय करना है कि क्या होना है वही होगा. उसको अल्लामा इकबाल ने एक मिसरे में बड़ा अच्छा कहा है कि तू अगर दीगर शवी ऊ दीगर अस्त. If you decide to change, that becomes your fate. अगर तुम अपने को बदल लो तो वही तुम्हारी तकदीर बन जाती है. लेकिन करना क्या है, इनपुट चाहिए उसके अंदर, जमीनी तगोदा, परसिवरेंस. जमीनी तगोदा अगर इंसान करेगा सिस्टमेटिकली टाइम से, तो फिर कामयाबी मिलती ही मिलती है. दुनिया में एक सोच है कि पूरी दुनिया के मुकाबले में भला मेरी क्या हैसियत. कुछ लोग ये सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो सोचते हैं कि पूरी दुनिया तो मेरी आंख की पुतली में समाई हुई है, मैं उसे पिछाड़ सकता हूं या पिछाड़ सकती हूँ. तो हमें दूसरी सोच रखनी है. पहली सोच से हमारा कोई लेना देना नहीं है. लेकिन शर्त क्या है कि अल्लामा इकबाल का पर्शियन के 4 मिसरे हैं, उसका एक साहब ने उर्दू में तर्जुमा कर दिया है हमारे आपकी सहूलत के लिए कि नकर आराम साहिल पर वहाँ तो है मध्यम नगमहाए जिंदगानी, लिपट जा बहर की मौजों से गाफिल, तगो दौ है हयात जावेदानी. तो ये करना है कि लिपट जाना है बीच में जाकर. अगर हमने ये तय कर लिया कि हम नदी के किनारे ठंडी हवा में तकिया लगाए लेटे हल्की म्यूजिक सुनते रहेंगे, तो मिल्लत का कुछ नहीं होना और भी खराब हो जाएगा मामला. लेकिन अगर हमने क्या किया, प्लंज इन द सी, बैटल विद द वेव्स, बीच में जाकर के मौजों से लड़ना है, तब हमें कामयाबी मिलेगी. उसके बगैर हमें कामयाबी नहीं मिलेगी. ये सरदार अमरजीत सिंह हमारे दोस्त हैं, रोज आज भी मुझको भेजते रहते हैं, रोज एक व्हाट्सएप पे बड़ी अच्छी हिकायत भेजते हैं. तो उन्होंने एक ये भेजा था कि समंदर सबके लिए एक जैसा है. कुछ लोग उसमें से मोती निकाल लाते हैं, कुछ लोग मछली पकड़ के ले आते हैं, और कुछ लोग भीगे पैर लेके वापस आ जाते हैं. तो जिंदगी हर एक के लिए एक जैसी मिली अल्लाह ने दी है. जो जैसी कोशिश करेगा उसको वही मिलेगा. उसने अल्लाह ताला ने कुरान करीम में क्लियर कर दिया है, लैसल इंसान इल्ला मा सा, जो तुम करोगे वही तुम्हें मिलेगा. और उसमें खाली ये ताकीद नहीं है कि तुम्हें करना जरूरी है तभी मिलेगा, बल्कि साथ साथ वादा भी है कि तुम करोगे तो मिलेगा इंशाअल्लाह. अल्लाह ताला जो है इंसान से कह रहे हैं, डिप योरसेल्फ डीप इनसाइड योर हार्ट, माइंड एंड कॉन्शियंस एंड एक्सप्लोर द पर्पस ऑफ लाइफ. Even if you are not able to fully identify yourself with me, that is with Allah Ta'ala, at least be conscious of your own full worth. ये इकबाल के शेर का मैंने तर्जुमा किया है कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़े जिंदगी. अल्लाह ताला कह रहे हैं इंसान से, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़े जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन. हमारा बस सारा मुद्दा यही है आज का कि हम अगर अल्लाह के लिए बनना है तो अपने तो बन जाए, इसलिए कि अल्लाह ने हमें बनाया ही ऐसा है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं. जस्टिस सच्चर कमेटी का नाम आप सब लोगों ने सुन रखा होगा. 2005 में उस वक्त के वजीर आजम ने कमेटी अपॉइंट की थी, प्राइम मिनिस्टर्स हाई लेवल कमेटी फॉर सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशन स्टेटस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया. जस्टिस सच्चर साहब का इंतकाल हो गया 2-3 साल पहले. बड़े नेक काम करके गए हैं बेचारे. तो वो कमेटी की रिपोर्ट नवंबर 2006 में आ गई थी. उसमें एक 400-500 पेज की रिपोर्ट है. बाय द वे प्राइम मिनिस्टर ने मुझे, क्योंकि एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी चाहिए था, बाकी सब लोग प्राइवेट थे, तो मुझे बनाया था ऑफिसर इन स्पेशल ड्यूटी फॉर इसी खास काम के लिए. तो उसकी रिपोर्ट जो आ गई, उसका मुद्दा ये है कि मुसलमान जो हैं वो बाकी सब मजहब मानने वालों के मुकाबले में हिंदुस्तान में समाजी, इक़्तिसादी और तालीमी एतबार से पीछे हैं, नीचे हैं. ये मुद्दा है, ये निकल के आई बात. लेकिन उसकी वजह भी बताई उन्होंने. वजह क्या है? चूंकि हुक्मरानी में हमारी आपकी हिस्सेदारी जितनी होनी चाहिए, 14.25% पॉपुलेशन है मुसलमानों की अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011.
जो 2011 की जनगणना है मरदम शुमारी, उसके हिसाब से हम 14.25% हैं, जबकि हम गवर्नमेंट में 2.5% 3% एवरेज, इससे ज़्यादा नहीं है कहीं भी। और बताऊं, ये तो हो गई एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस। पॉलिटिकल गवर्नेंस भी है, उसकी बात भी आप सुन लीजिए ज़रा सी। वो ये है कि लोकसभा में 543 सीट्स होती हैं। अभी मैंने आपसे अर्ज किया नेशनल मुस्लिम पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से 14.2% है। उसके हिसाब से लोकसभा में 77 मुसलमान होने चाहिए, लेकिन 1952 की पहली लोकसभा थी, तब से लेकर के अब तक मैंने खुद कैलकुलेट किया है तो जो औसत नंबर मुसलमानों का है वो 25 से कम रहा है, यानी कि जितना होना चाहिए उसके 1/3 से कम। उसकी क्या वजह है, ये भी सच्चर कमेटी ने बताई है। सच्चर कमेटी ने, आमतौर से लोग समझते हैं कि टिकट नहीं देती पार्टीज, और अगर टिकट मिलता है तो वोट नहीं मिलता, तो इस वजह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कम है ऐवान में। लेकिन ये कि सच्चर कमेटी ने बताया कि जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए सीटों का, पार्लियामेंट में, असेंबली में और लोकल बॉडीज में भी, स्थानीय निकाय वहाँ भी, के लिए उन्होंने ये कहा कि लॉ ये है, कानून ये है कि जहाँ पर पूरे सूबे में सबसे ज़्यादा परसेंटेज हो शेड्यूल कास्ट की, उसे रिजर्व करना चाहिए। लेकिन है इसका उल्टा, जहाँ पर मुस्लिम जो हैं हाईएस्ट परसेंटेज में हैं वो रिजर्व हैं, वहाँ शेड्यूल कास्ट बहुत कम भी हो तब भी कोई बात नहीं। और ये हमने पूरे ज़कात फाउंडेशन का एक डिपार्टमेंट है डिलिमिटेशन, पिछले हम 8-10 साल से यही काम कर रहे हैं। हमारी रिपोर्ट तैयार है, इंशाल्लाह जल्दी पब्लिश होगी। उसके यही सब डेटा निकल के आए हैं। सच्चर कमेटी ने तो खाली फ्लैग किया था मामला, इसलिए उसके पास इतना टाइम नहीं था, लेकिन हमने 8-9 साल में ये काम पूरा कर दिया, पूरे इंडिया का डेटा तैयार कर दिया है। इसमें मैं आपको यूपी का एक मिसाल दे देता हूँ। नगीना जो है वहाँ 53.5% मुस्लिम्स हैं। ये सब सेंसस की फिगर है, ये कोई वो नहीं है, लफाजी नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि वहाँ मुस्लिम 53.5% हैं, जबकि शेड्यूल कास्ट वहाँ 12% से कम है, तो वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। लेकिन बेइंतहा वो है कॉन्स्टिट्यूएंसी लगा हुआ, वहाँ धौरेड़ा है, वहाँ इसका उल्टा है, वहाँ शेड्यूल कास्ट बहुत हाई परसेंटेज में है, मुस्लिम हार्डली प्रेजेंस है वहाँ पर, वो रिजर्व नहीं है। तो ये कानून की खिलाफ वर्जी होती चली आ रही है पूरे हिंदुस्तान में। उन्नाव में भी यही पोजीशन है, उधर वेस्ट बंगाल, आसाम में करीमगंज में ये पोजीशन है, जोरहट डिब्रूगढ़ में यही है, राजस्थान में बागरू में यही है, कर्नाटक गुलबर्गा चिकबल्लारपुर में यही है, बिहार असेंबली में भी बगहा और बलिया, ये सब खाली मिसालें हैं। लखनऊ में भी, दिल्ली में भी, और आपके वेस्ट बंगाल में खरग्राम, तूफानगंज, सब उल्टा मामला चल रहा है सारा। तो और इसकी तफसील अगर आपको देखनी हो तो आप सच्चर कमेटी ऑनलाइन मौजूद है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की भी अभी मौजूद है, वरना ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है zakatindia.org, उसमें आप देख सकते हैं, सारी तफसील दी हुई है, बार बार दी हुई। तो इसके लिए सच्चर कमेटी ने ये रिकमेंड किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि डिलिमिटेशन कमीशन को रेफर किया जाए मामला, और ये जो खराबियां हैं ये ठीक की जाए। लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन उस वक्त बैठा था और उसके बाद 1.5 साल तक बैठा रहा, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने भी इसको कहा नहीं, किया नहीं काम। हालांकि मैंने खुद प्राइम मिनिस्टर से बात कही थी, ये इस वक्त की कुछ रिपोर्टें भी हैं और उसके ऊपर बहुत लिखा पढ़ा भी मैंने, और जगह जगह इसको आया। और मैंने तो जब हमारे नरेंद्र मोदी साहब वजीर आजम बनने वाले थे तो उन्होंने एक मीटिंग की थी, उसमें कुछ मुसलमानों को भी बुलाया था अहमदाबाद में, तो वहाँ पर मैंने सामने प्रेजेंटेशन किया था, वहाँ भी ये बात रखी थी मैंने। लेकिन ये कि न वो गवर्नमेंट न ये गवर्नमेंट किसी ने ये काम किया नहीं, लेकिन हमें तो बहरहाल करना है, हमारी रिपोर्ट तैयार है, मैं भी आपसे अर्ज करूँगा। इस सिलसिले में हम फिर भी कहाँ जहाँ तक मुमकिन हो कुछ न कुछ ज़मीनी सतह का काम भी करते रहे हैं। मसलन मैं आपको ये बताऊं कि जब यूपी का बाइफर्केशन हुआ, उत्तराखंड बना, तो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंसीज का बाइफर्केशन भी हुआ, तो उसके हिसाब से कुछ रिकॉन्फिगरेशन होना था। तो इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन इशू किया और कहा कि हम
सहारनपुर को रिजर्व करने जा रहे हैं। सहारनपुर में 45% 46% मुस्लिम पॉपुलेशन है एज पर गवर्नमेंट, तो उसको क्यों रिजर्व करें भाई, तो गलत है लॉ के हिसाब से। तो हमने फिर, और ये उन्होंने कहा ऑब्जेक्शन किसी को फाइल करना हो तो करो, तो ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया। फिर हियरिंग हुई, पूरा कमीशन उठ के सहारनपुर गया, हमारे नुमाइंदे गए, सब बहस हुई, डॉक्यूमेंटेशन पेश किया, तो उन्होंने अपना इरादा बदल दिया, लिख करके ऑर्डर पास किया कि हम करने जा रहे थे, लेकिन ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया की बात सही है, उसको नहीं किया, और जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंसीज कही थी इनमें से एक कर दिए, वो कर दिया हमने। दिल्ली नगर निगम है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद में कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, वार्ड्स को हमने ठीक करवाया है इलेक्शन कमीशन से मामला तय करके। उसकी वजह से जो नंबर ऑफ मुस्लिम कॉरपोरेटर्स है वो काफ़ी बढ़ गया, इजाफा हो गया उसके अंदर। यही बॉम्बे में किया हमने, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी, वहाँ भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया। तो ये रिपोर्ट हमारी तैयार है, अभी हमने इसको पब्लिश नहीं किया है, बहरहाल इंशाल्लाह। तो ये मैंने आपसे क्यों अर्ज किया, और हम इसके ऊपर आगे भी काम करने जा रहे हैं, डिलिमिटेशन एकेडमी बनानी है, कार्डर ऑफ डिलिमिटेशन ऑफिसर, सब ज़कात फाउंडेशन के अंडर में इंशाल्लाह काम होना है। लेकिन ये मैंने आपसे क्यों अर्ज किया, मुद्दा दूसरा है। अब ये सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है कि हु रिजर्व्स और डी रिजर्व दिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज या वार्ड्स जो हैं इनको रिजर्व कौन करता है, इसको गौर करने की जरूरत है। तो आप ये समझ लें कि कोई रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का कोई पॉलिटिशियन नहीं करता। जो जमीनी हकीकत है वो ये है कि सब गवर्नमेंट ऑफिसर्स करते हैं। उससे लगा हुआ सवाल ये है कि हिंदुस्तान में एक्चुअली हुक्मरानी करता कौन है, तो वो भी जवाब यही है मेरा कि वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, ये लोग हुक्मरानी नहीं करते हैं। ये 10% से ज़्यादा हुक्मरानी इनके हाथ में है ही नहीं। जो असली हुक्मरानी है वो सिविल सर्विस, ब्यूरोक्रेसी के हाथ में, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के हाथ में है। कानून बनाना भी, ड्राफ्टिंग, लॉ की ड्राफ्टिंग भी, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डिसीजन मेकिंग, हर चीज़, लॉ एंड ऑर्डर, हर चीज़ जो है वो सरकारी अफसर करते हैं। अब ये है कि हमने सोचा भी सरकारी अफसर पे अपने बंदे बिठा दो तो काम हो जाना चाहिए इंशाल्लाह। तो यही बहुत 10-12 साल से करीब लगे हुए हैं इसमें, ऑर्गेनाइज्ड वे हैं। तो लिहाजा ये अल्हम्दुलिल्लाह अब तक की काफ़ी कामयाबियाँ मिली हैं। ये तस्वीर बड़ी गौर से देखने की ज़रूरत है कि देखिए एक सरकारी अफसर जो है राइट साइड में दाहिने हाथ पे बैठा हुआ है, और लेफ्ट हैंड पे क्या दिख रहा है आपको, मिल्लत बैठी भीख मांग रही है। तो मैं आपके पास जो आया हूँ वो ये कहने के लिए कि आप दाहिने हाथ पे मिल्लत को बिठा दीजिए, ये आपके हाथ में है, आप लोग जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। यूपी में खास तौर से, यूपी में बड़ा डिफॉल्ट चल रहा है इस मामले में, जबकि पूरे मुल्क की हुक्मरानी में ही यही होना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर है वगैरह वगैरह, सब जगह जो है आपके बंदे बैठने चाहिए और बैठ सकते हैं। लेकिन ये चीज़ गौर करने की बड़ी ज़रूरत है कि अगर हम किसी बच्चे को सरकारी मुलाजिमत दिलवाते हैं तो खाली ये नहीं है कि उसको मुलाजिमत मिल गई और वो ज़ाती तौर पर बेहतर हो गया, उसकी फैमिली गई, बल्कि आप उसके ज़रिए सरकारी मुलाजिमत दिलवा करके आप उसको एम्पावर कर रहे हैं। किसको? कम्युनिटी को, मिल्लत को आप एम्पावर कर रहे हैं, मिल्लत को आप बाख्तियार बना रहे हैं अगले 10, 20, 50 साल के लिए, कम से कम सिर्फ एक बंदे को बना करके वहाँ। तो है क्या कि हमारे बच्चे और बच्चियाँ जो हैं वो अगर HRD और लॉ मिनिस्ट्रीज में बैठें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जामिया मिल्लिया का जो किरदार है वो ख़त्म हो ही नहीं सकता। उसी तरह से लॉ कमीशन में बैठ जाएं, हर जगह अपने बंदे बैठे हुए, हर लेवल, ऊपर से लेकर नीचे तक है ही नहीं। मैंने नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, राष्ट्रपति भवन से लगा हुआ, वहाँ पर 32 साल गुजारे हैं घूम करके। आप यकीन माने एक कोने से दूसरे कोने अगर से पैदल चलना तो आधा घंटा लगता है, लेकिन बीच में जितने कमरे लेकिन मिलेंगे आपको, तख्तियाँ लगी हुई, आपको अपना तो कहीं बंदा कोई बैठा मिलेगा नहीं आपको। हमारे बच्चे जो हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर में बैठ सकते हैं जगह जगह,
आप सोचिए सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बन सकते हैं, उनके दफ्तर में बैठ सकते हैं। ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, ये एक आदमी है इरशाद अली, ये पुलिस इन्फॉर्मर हुआ करता था, लेकिन कुछ दिनों बाद पुलिस ने उसको फ्रेम कर दिया किसी मामले में, वो 14 साल तक जेल रहा। इस बीच में उसके दोनों वालिदैन की डेथ हो गई, 9 साल की बच्ची थी उसकी भी हो गई, बच्चे की तालीम खत्म हो गई, उसका घर जो था वो उसके लैंडलॉर्ड ने कहा कि आप ये घर वापस कर दीजिए वरना इतने पैसे जमा करिए। बहरहाल ज़कात फाउंडेशन उसकी मदद की। लेकिन ये कि ये सब चीज़ें जो हैं क्यों हुई, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन हुआ। अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, डिस्क्रिमिनेशन रफा होना है तो आप अपने बंदे को बिठाइए जगह जगह। उसी तरह से सच्चर कमेटी का जो रिकमेंडेशन थे बहुत ज़्यादा थे, उसमें बहुत कम इम्प्लीमेंट हुई, निफाज हुआ थोड़ा थोड़ा हुआ लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि निफाज करने वाले भी वही लोग थे जहाँ आपकी नुमाइंदगी नहीं थी। जगह जगह जो है चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में भी और सब जगह में लोग काफ़ी हैं। तो हमें क्या करना है, हमें दुनिया कैसी छोड़नी है। हम अभी 2020 में हैं, 2120 100 साल के बाद हम में से कोई यहाँ नहीं होगा, लेकिन मिल्लत तो होगी। उसकी ज़िंदगी हमें कैसे बनानी है। 2220 2320 200 साल बाद 300 साल बाद जो मिल्लत होगी उसकी ज़िंदगी क्या हम कैसी बनाना चाहते हैं। क्या हम चाहते हैं म्यांमार जैसी हो जाए, अल्लाह ना करे, या हम चाहते हैं कि आज के मुकाबले बेहतर। ये हमें और आप जो है तय करेंगे, आज कुछ करके या कुछ ना करके। और कर हम सकते हैं, ये तो टेस्टेड है मामला कि हम कर सकते हैं। तो मुझे आपसे जो पैगाम देना है अल्लामा इकबाल की ज़बानी, वो है कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। सिर्र आदम है ज़मीरे कुन फ़का है ज़िंदगी। कुन फ़का का लफ्ज़ जो है ना, कुन फ़यकून से निकला है। अल्लाह ताला सब जानते हैं, कुरान करीम फरमाया है कुन फ़यकून का मतलब ही कि अल्लाह ताला जब कोई इरादा करता है ये काम हो जाए तो कहता है कुन, वो हो जाता है काम। तो ये जो कुन फ़यकून है ये क्वालिटी का नाम है, खुदा की क्वालिटी ऑफ क्रिएशन, पैदा करने की ताकत जो है अल्लाह ताला, वही हम में से हर एक के अंदर होनी चाहिए कि हमें कुछ नया पैदा करना है। इसीलिए अल्लामा कह रहे हैं अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। तो जिंदगी का जो राज है वो ज़मीरे कुन फ़का है। तो हमारी जिम्मेदारी, हमें अपनी जिम्मेदारी समझ के एंड वी हैव टू आंसर द कॉल ऑफ ड्यूटी। लेकिन इसकी करंट ग्राउंड रियलिटी क्या है वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। मैं तो सिविल सर्विस का डेटा आपको दे रहा हूँ। तो सिविल सर्विस के अलावा जो अफसर हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी के, वहाँ डेटा और ख़राब है, इससे भी ज़्यादा। इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। मैंने काफ़ी स्टडी किया है इसको कि हर साल करीब 10 लाख लोग सिविल सर्विस के इम्तिहान में बैठते हैं जो यूपीएससी करता है, और उसमें से तकरीबन 1000 लोग सेलेक्ट होते हैं। मोटा मोटा फिगर ले रहा हूँ मैं। तो उसमें सभी आपको मैंने अर्ज किया कि 14.25% मुसलमान हैं, तो 1000 में से 142 मुसलमान होने चाहिए, है ना। लेकिन ये कि 40-50 से वो 40-50 भी पिछले 10-12 साल की मेहनत के बाद, वरना पहले तो बहुत बुरा हाल था, अब हुआ शुरू। इससे ज्यादा सेलेक्ट नहीं होते। की वजह क्या है? की वजह ये है कि जो उम्मीदवार है ना 10 लाख, उसमें भी तो 1,42,000 बैठे हैं। 10 लाख में से 1,42,000 14% के हिसाब से तो उतने बैठे, तब हम कहें कि भाई मुसलमान क्यों नहीं आए। लेकिन बैठते तो 1% भी नहीं है। 14% छोड़ दीजिए, 1% भी नहीं बैठते, कहीं भी नहीं बैठते। दैट इज द प्रॉब्लम। और यूपी में जो गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें हाल बहुत ही बुरा है। पता ही नहीं लोगों को, बैठने का तो क्या सवाल हो सकता है। जबकि यूपी में मुसलमान जो है वो जो स्टेटेड फिगर है उसके हिसाब से 20% है। तो हर जगह जो उम्मीदवार हैं उसमें 1/5 पांचवा हिस्सा मुसलमानों का होना चाहिए उम्मीदवारी में। जब उम्मीदवारी में हम आप होंगे तभी तो सेलेक्ट होंगे इसमें। तो इन यूपी's कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस मुस्लिम कैंडिडेट्स आर नॉट इवन 1%। तो ये मेन मुद्दा है आज की हमारी आपकी मुलाकात का। तो हमें अपनी जिम्मेदारी पहचाननी है और अपनी जिम्मेदारी निभानी है अपने कंधों के ऊपर। इसीलिए हमने क्या किया ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया में कि ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया तो 1997 से चल रही थी, लेकिन
2007 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हमने कहा ये हमें करना पड़ेगा, तो उसमें एक सर सैयद कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर कायम कर दिया। सर सैयद के नाम के ऊपर क्यों किया? क्योंकि सर सैयद अहमद खान, हालांकि सब लोग जानते हैं कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज उन्होंने बनाया जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया, लेकिन ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि 1883 में उन्होंने मोहम्मदन सिविल सर्विसेज फंड एसोसिएशन भी कायम किया था। उसके जरिए क्या होता था कि 500 उसके उन्होंने मेंबर बनाए थे, हर मेंबर 2 रुपए देता था, और वो रुपए इतने काफी होते थे कि हर साल 15 लड़कों को वो भेज देते थे शिप के जरिए इंग्लैंड ICS का इम्तिहान देने के लिए। ये विजन था उस आदमी का, और भी उन्होंने बहुत काम किए। वर्धा एक जिला है महाराष्ट्र का, वहाँ सर सैयद का कोई लेना देना नहीं वर्धा से, लेकिन मालूम उन्हें ये हुआ कि बहुत बड़ी तादाद में वहां पर सरकारी नौकरियां एडवर्टाइज हुई हैं, तो पहुंच गए वहां सर सैयद, और पहुंच करके कई महीने पहले वहां मुसलमान बच्चों को ढूंढ ढूंढ करके उनको सब पढ़ा लिखा तैयारी करवाना, कोचिंग करना, ये वो सब करा दिया। उसका नतीजा ये हुआ, ये वहां के गजेटियर में लिखा है, अभी भी हर डिस्ट्रिक्ट का एक गजेटियर होता है, तो वर्धा का गजेटियर उठा के देख लीजिए, ऑनलाइन भी मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं कि शायद 1887 या कब की बात है, तो उसी जमाने में कि उन्होंने कहा वर्धा में बहुत बड़ी तादाद में सरकारी आसामियां मुश्तहिर हुई थी, एडवर्टाइज हुई थी, और उसके बाद हालांकि वहाँ मुसलमान 9% थे, लेकिन जब रिजल्ट निकला तो पता नहीं क्या हुआ कि आधी से ज्यादा वैकेंसीज पे मुसलमान अपॉइंट हो गए। तो मालूम किया कुछ लोगों ने ऐसे ही इंटरेस्ट के तौर पर, मालूम ये हुआ कि एक आदमी सैयद अहमद खान का नाम का आया था कई महीने पहले, और यहाँ वो कोचिंग वोचिंग करवा के गया, उसका नतीजा ये निकला। तो ये है, हमें सर सैयद के नाम के ऊपर अपना कोचिंग सेंटर कायम किया। उसमें रिटन टेस्ट होता है हर साल, हमारा इंटरव्यूज होते हैं, सिलेक्शन होते हैं, बच्चों को रखा जाता है। 4 हॉस्टल्स हैं दिल्ली में, बॉयज़ के और एक गर्ल्स का, उसमें बच्चों को रख करके उनके लिए सब इंतज़ाम वगैरह करके और उनकी बेहतरीन कोचिंग करके, तो अब इसका नतीजा ये हुआ कि साल ब साल अल्हम्दुलिल्लाह तब से मुस्तकिल माशाल्लाह से कामयाबियाँ होती चली जा रही हैं। अल्लाह मियाँ तो बैठा है हमारी मदद करने के लिए, मगर हम तो मायल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, हम में से कोई आगे एक कदम बढ़ाता ही नहीं, तो बाकी 9 कदम वो क्या ले। हमने कुछ लोगों ने लिया, तो अब देखिए ये बच्ची जो है ये सिलेक्ट हो गई IAS में, वेस्ट बंगाल काडर में है, सना अख्तर। इसके वालिद मेरठ के एक अतराफ में और एक गांव में कहीं पर दर्जी हैं अभी भी। उसकी लड़की सिलेक्ट हो गई, IAS ऑफिसर हो गई। तो काबिल बच्चों की कमी है ही नहीं, हमें खाली उनको ढूंढना है, उन तक पहुंचना है। सल्तनत उस्मानिया जो था, ऑटोमन एम्पायर, उसका हिस्ट्री आप उठा के पढ़ लीजिए, ऑनलाइन भी है, मैंने ऑनलाइन पढ़ी है कि वो बहुत कामयाबी से चली 750 साल तक, ऑटोमन एम्पायर। तो उसमें लिखा है हिस्ट्री में कि उसकी मेन वजह ये थी कि जो बादशाह सलामत होते थे, उन्होंने अपने महल में ही एक एकेडमी कायम कर दी थी, उसका नाम था इंदुरुन एकेडमी, गालिबन अंदरून रहा होगा पहले, अंदरून महल के अंदर, तो उससे इंग्लिश में इंदुरुन बन गया, इंदुरुन एकेडमी, जिसमें कि वो पूरी सल्तनत से जो काबिल तरीन बच्चे थे उनको ढूंढ के लाते थे, वहां रखते थे, उनको कई साल की ट्रेनिंग कोचिंग सब समझाते थे, ट्रेन देते थे, और उन्हीं को जो है वो सरकारी महकमों में जगह जगह पोस्ट कर देते थे। वो वजह थी जिसकी वजह से उनकी सल्तनत 750 साल तक बहुत कामयाबी से चलती रही। ये है एंडोरन एकेडमी, इसको आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो इसीलिए मैंने आपसे शुरू में ही अर्ज किया कि जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में, मीना उसी का है। हमें आपको तय करना है कि हमें अपने को आगे बढ़ाना है। और ये भी देखिए, ये बच्ची, एक फोटो दिखा रहा हूँ आपको मैं, ज़ैनब सईदी, हमारी ज़कात फाउंडेशन की एक बच्ची हुआ करती थी कई साल पहले। तो वो हमेशा उसने हिजाब पहना, और UPSC का इंटरव्यू देने भी हिजाब ही पहन के गए, और हिजाब पहनने के बावजूद उस साल पूरे हिंदुस्तान में UPSC ने उसको इंटरव्यू में सबसे ज्यादा नंबर दिए,
تو لہٰذا یہ بھی سمجھ لیں آپ کہ یہ ہمیں بہانے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ بڑا تعصب ہوتا ہے. تعصب ہے، تعصب خالی ہم سے نہیں ہے اور لوگوں سے بھی ہے، لیکن جہاں پر قابلیت ہے، انگریزی کی ایک کہاوت ہے میرٹ از اے تھیسٹ، جہاں جو میرٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا وہ اپنا مقام خود بنا لیتی ہے. یہ بھی ایک صاحب ہیں ہمارے پہلے بیچ کے، آپ کو دکھا رہا، ویسے تو قریب 150 لوگ اب تک سلیکٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ. پہلے بیچ کے آپ یقین مانیں کہ ایسے اس سے زیادہ قابل بچے جو ہیں وہ یو پی میں لاکھوں نہیں اور زیادہ ہوں، شاید 10-20 لاکھ تو ہوں ہی، اس سے کم تو ہے ہی نہیں. تو یہ محمد شاہد عالم جھارکھنڈ کے اسی طرح کے ایک بچے تھے اور ہمارے یہاں سلیکٹ ہو کر کے آ گئے تھے پہلے بیچ میں ہی، اور ابھی ان کی پوسٹ فارن سروس میں ہیں. ابھی ان کی پوسٹنگ ختم ہوئی جدہ میں، ڈپٹی کونسل جنرل تھے انڈیا کے، اور ابھی واپس انڈیا آ گئے ڈپٹی سیکرٹری ہیں منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز. تعداد بھری پڑی ہوئی ہے، لیکن اگر ہم نے آپ نے آگے بڑھ کر کے یہ کام نہیں کیا تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ زمانہ وقت ہم سے پوچھے گا کہ نہ تھا اگر تو شریک محفل، قصور تیرا ہے یا کہ میرا. یہ نہ تھا اگر تو شریک محفل، قصور تیرا ہے یا کہ میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی کی خاطر میں شبانہ. اٹھا کے رکھنا، میں آپ کے لیے کچھ نہیں رکھوں گا، آپ وقت سے آئیے، اپنا ہاتھ بڑھائیے، لے جائیے اپنا. تو اس کے نتیجے میں ابھی میں آپ کو عرض کر رہا تھا الحمدللہ 2008 سے 2020 کے دوران 150 بچے جو ہیں IAS اور IPS اور IRS اور قسم سروسز میں الحمدللہ زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا کے ذریعے جوائن کر چکے ہیں. تو یہ اس کی ویب سائٹ ہے zakat.india.org. اب ہم نے کیا کیا، یہ آپ کو ہمارے تجربات سے سیکھنا ہے. ہم نے کیا کیا کہ آئیڈینٹیفیکیشن آف کینڈیڈیٹس نیڈس ٹو بی ڈن موسٹ اسٹرکٹلی آن میرٹ. کوئی بھائی بھتیجا بات کچھ نہیں اس میں چل سکتا، کچھ نہیں چلنا ہے. صرف ایک وہ ہے کنڈیشن کہ کلمہ پڑھتا ہوا ہو، بس. باقی جو ہے وہ میرٹ میں جو آگے ہے سو آگے ہے. سب لوگ بیٹھ کر کے لائن کھینچ دیتے ہیں کہ اس کے نیچے کا نہیں لیا جانا، اوپر کا ہی لیا جائے گا، بات ختم ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد بہترین اس کی کوچنگ کروائی جاتی ہے. ہمیں ایک اینول ایکشن پلان بھی بنانا پڑے گا، مطلب لوگ دلچسپی لیں اس کے اندر، اور ایک جو ہے وہ ورک ڈسٹریبیوشن چارٹ آپس میں بنانا پڑے گا. سسٹمیٹیکلی یہ کام کرنا ہے ہر ایک کو. سبجیکٹ وائز لیسن پلانس بنانے پڑیں گے. تو گورنمنٹ سروس کو ابھی میں آپ سے جو بھی عرض کر رہا تھا دوبارہ یہ بات آ گئی یہاں کہ it does not give only a job to an individual but it also empowers the deprived community and the nation. علامہ اقبال کہے گئے ہیں کہ چاہے تو بدل ڈالے حیت چمنستاں کی، یہ ہستی بینا ہے، دانا ہے، توانا ہے. سب کچھ ہے اپنے پاس، لیکن ہم چاہیں تو بدل سکتے ہیں، اگر نہیں چاہیں گے تو ٹھیک ہے، پھر مجبوری والی بات ہے. وہ انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کہی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو کہا تھا اسی کی وہ عکاسی کر رہے تھے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہیں بدلتے. تو ہمارے اوپر مینڈیٹ موجود ہے ہمارے پاس کہ اگر ہم نے کوئی محنت نہیں کی آگے بڑھ کر کے تو ہم مٹی کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے، لیکن اگر ہم نے آگے محنت کر لی تو ہم بڑے بڑے شیشوں کو بھی توڑ سکتے ہیں پتھر بن کر کے. فاستبقوا الخیرات، اچھے کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو. یہ ہمیں اپنا موٹو بنا کے رکھنا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو نشست ثانیہ کی جستجو عرض کیا ان ہاٹ پرسوٹ آف رینائساں، وہ اسی لیے کیا ہے کیونکہ علامہ نے سمجھا دیا ہے کہ گئے وہ ایام اب زمانہ نہیں ہے صحرا نوردیوں کا، جہاں میں مانند شم میں سوزاں میان محفل گداز ہو جا. آگے بڑھ کر کے اپنی ملت کو آگے بڑھانا پڑے گا. میں آپ کو ایک اپنا ناگپور کا تجربہ اس سلسلے میں بتا رہا ہوں. میں ناگپور پوسٹڈ تھا، سعودی عرب سے لوٹ کے آیا جب میں وہاں میں فرسٹ سیکرٹری تھا انڈین ایمبیسی میں. تو ناگپور پوسٹنگ ہو گئی. ناگپور میں جانا نہیں چاہتا تھا لیکن بہرحال اس وقت ایسا تھا جانا ہی ہے. 2 سال میں نے ناگپور رہنا تھا. تو وہاں پر میں نے یہ کہا کہ بھئی
8-10 घंटे तो सरकारी नौकरी करनी है, लेकिन बाकी 14 घंटे और भी हैं, तो मिल्लत का कुछ काम करना है। तो वहाँ पर मालूम हुआ कि मोमिनपुरा एक बहुत बड़ा मोहल्ला था नागपुर शहर में, लेकिन ये और वहाँ ये भी मालूम हुआ कि उस साल नागपुर यूनिवर्सिटी में जिस बच्चे ने LLB में टॉप किया था उसका नाम था मुस्तफ़ा। लेकिन किसी भी मुकाबले के इम्तिहान में कोई बच्चा नागपुर का आज़ादी के बाद से 1991 में मैं वहाँ गया हूँ तब तक कोई नहीं बैठा था। जब बैठा ही नहीं तो कहाँ से रिजल्ट आएगा, है ना। जब तुम लॉटरी का टिकट ही नहीं खरीदोगे तो लॉटरी निकलने का क्या सवाल उठता है। तो फिर हमने लोगों को जमा किया, आपकी तरह के वहाँ पर हर फील्ड के लोगों को जमा किया और उनकी एक कमेटी बनाई। हम क्या करते थे कि काबिल तरीन बच्चों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद उनके घर जाते थे। मगरिब के बाद हम लोग कई लोग मिल करके उनके घर जा करके उनसे और उनके वालिदैन से बात करते थे कि भाई आपका बच्चा तो काबिल है, तो आप इसको मुकाबले के इम्तिहान में बिठाइए और हम मदद करेंगे। और हमने वहाँ एक अंजुमन स्कूल था, वहाँ एक कमरा ले लिया था। उनसे कहा बच्चों से कि आप इतवार के दिन आ जाना वहाँ 11 बजे और हम बात करेंगे और आपको मुहैया करेंगे सब मवाद वगैरह। तो हम सब पहुंच गए इतवार के दिन, कोई बच्चा नहीं आया। तो हम हर दिन जाते थे बहरहाल। उसके बाद फिर हम जाते रहे, फिर दूसरे अगले इतवार को भी नहीं आया। इस तरह से 7 इतवार निकल गए और कोई बच्चा नहीं आया। लेकिन हम 8वें हफ्ते भी गए उनके घर और तब बच्चे आना शुरू हुए। और मुख्तसर ये है कि 2 साल की मुद्दत जब खत्म हो रही थी, मैं वहां से आ रहा था, तो एक बच्ची सिविल सर्विसेज में जो कि इस वक्त चीफ कमिश्नर है और एक बच्चा महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के किसी लोअर कार्डर में आया था, लेकिन अब वो काफी सीनियर पोजीशन में है, वो सिलेक्ट हो चुके थे बाकायदा। जबकि नागपुर में 1991 तक 1947 से कोई बच्चा या बच्ची बैठे ही नहीं थे इम्तिहान में। तो ये एक मैंने आपको इस वजह से बताया मिसाल कि आप इसको इमिटेट कर सकते हैं। अल्लामा इकबाल कहे गए हैं कि जो पानी का कतरा होता है ना समंदर में जब गिर रहा होता है तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, 2 मुतबादिल होते हैं, 2 अल्टरनेटिव्स होते हैं। एक तो ये होता है कि समंदर की जो सतह के ऊपर जो मौजों का तलातुम है उसमें शामिल हो जाए और उस मौजों की एनर्जी को, उसके तलातुम को और बढ़ा दे। और दूसरा ऑप्शन उसके पास ये होता है कि सीधे नीचे चलता चला जाए और पेंदे में वहां नीचे गहराई में जहां पर बालू है वहां कोई सीप तलाश करके उसके अंदर बैठ जाए और इंतजार करता रहे कि मोती बन जाऊं। अगर मोती बन भी गया तो अपनी झूठी अना में रहेगा हमेशा, और बाद में जब उम्र के आखिरी हिस्सों में उसको अंदाजा होता है कि मैंने गलत काम किया, मुझे मौजों के तलातुम में शामिल हो जाना चाहिए था। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि तर्क तगो दो कतरे ने, की तर्क तगो दो कतरे ने, तो आबरूए गौहर तो मिली, मोती तो बन गए, आवारगी फितरत भी गई और कश्मकशे दरिया भी गई। खुद भी इनएक्टिव रहा, उसकी वजह से सेहत भी खराब हो गई और जो मिल्लत की कश्मकश में इजाफा कर सकता था वो भी नहीं कर पाया। तो ये बहुत सबक लेने वाली चीज है। अभी तक जो मैंने आपसे अर्ज किया ये सब तमहीद थी। तमहीद की रोशनी में ये है कि उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट और जुडिशल जो वैकेंसीज होती हैं उनको फिल करने के ये 7 बॉडीज हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन यूपी का, सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, पावर कॉरपोरेशन रिक्रूटमेंट कमीशन, हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। और भी हो सकती है, बहरहाल ये 7 हैं यहाँ पर जो बॉडीज हैं गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं। इनमें से बहुत सी जॉब्स ऐसी हैं जिसमें कि 12वां काफी है और कुछ 1-2 ऐसी भी हैं जिसके लिए 10वां ही काफी है, 12वां दर्जा पास होना, 10वां दर्जा पास होना, वरना ग्रेजुएशन से ज्यादा नहीं चाहिए
गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए यूजुअली, शायद हायर एजुकेशन के लिए होगा, लेकिन बाकी आमतौर से यही। अब इसमें से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इसमें से हर एक में आपको वेबसाइट पर आपको खुद को जाना चाहिए। देखिए, आप जब घुसेंगे नहीं, दरिया में कूदेंगे नहीं, आपको अंदाजा नहीं होगा कि मुझे क्या करना है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है ना, वो भी इसी तरह का है। क्योंकि आपका बच्चा यूपी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यूपी की मुख्तलिफ सतह की ग्रुप बी और ग्रुप सी की सर्विसेज के लिए कोशिश करेगा ही, उसी मेहनत से वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी बैठ सकता है। उसकी वेबसाइट ये है ssc.nic.in। आप इसका अपने फोन से फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके अलावा आपको हर वेबसाइट पे जो स्टेट गवर्नमेंट के, आपके यूपी गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट होते हैं, वहां भी आपको जाना है और आपको टाइम स्पेंड करना है और समझना है वहां। अब शुरुआत मैं कर रहा हूँ यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी वेबसाइट ये है। मैं आपको फैसिलिटेट कर रहा हूँ ताकि आप, ये मैंने कहा से कि ये आज ही सुबह बैठ करके थोड़ी देर के अंदर मैंने सारा गूगल में ढूंढा, सब निकल आया। uppsc.up.nic.in, ये यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है, वहां तफसील मिल जाएगी आपको। उसके बाद उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, upsssc.gov.in, वहां सारी मौजूद है इसकी तफसील वगैरह। देन यूपी हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, ये हाई कोर्ट खुद कहीं काम करता है अपने ही तहत। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट.in ये वेबसाइट है, उस पर जाने से भी आपको मिल जाएगा लिंक, वरना इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो नीचे भी मैंने दे रखा है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आप खुद भी ढूंढ लेंगे। आई एम श्योर मुझसे ज़्यादा आप जो है वो इंटरनेट सावी होंगे। देन यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड लखनऊ, ये अलग है, इसका uppb.gov.in, इसकी वेबसाइट अलग है। इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए और गौर कर लीजिए, इसके ऊपर अपने को समझा लीजिए। देन उसके बाद है पावर कॉर्पोरेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड, upenergy.in, जो पावर कॉर्पोरेशन का बोर्ड है, उसमें ही इसी के सब डिटेल्स दी हुई हैं रिक्रूटमेंट के वगैरह, ये हो गया। देन यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, इसकी वेबसाइट ये है site.uphesc.org। ये हर चीज मौजूद है, हर चीज आज के ज़माने में। ये जो अल्लाह ताला ने पहली वही उतारी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, उसमें चौथी लाइन में कलम का जिक्र आया है। तो मैं पूछता हूँ अपने ऑडियंस से कि भाई कलम किसे कहते हैं, तो कोई फाउंटेन पेन निकाल के दिखाता है, कोई बॉल पेन। तो वो 1400 साल पहले न फाउंटेन पेन था, न बॉल पेन था, न पेंसिल थी, लेकिन कलम का लफ्ज़ अल्लाह ने तब भी इस्तेमाल किया। तो कलम के मतलब है कोई भी ऐसा आला जिससे कोई इत्तला या कोई इल्म की बात एक इंसान से दूसरे इंसान या एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके। तो अभी 21वीं सदी का जो आला है वो इंटरनेट है, ये वही कलम है, पहली वही वाला। अगर हमने उसको नकार दिया, हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया, तो हम अल्लाह के अच्छे बंदे, अच्छे मोमिन नहीं हैं। तो ये है साइट, ये देख सकते हैं यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन का। और यूपी सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वो ये है upsessb.org। इतने सब हैं, हर साल 10, 15, 12, 14, 17 हज़ार लोग सेलेक्ट होते हैं और वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में जॉब हो जाते हैं। कि हमारे आपके बच्चे बैठते ही नहीं हैं, वो अपने सड़क पे गुल्ली डंडा खेलते रहते हैं, वो अपने प्राइवेट कंपनियों में क्लरिकल जॉब ढूंढते रहते हैं, वो भी नहीं मिलती उन्हें, फिर वो बहक भी जाते हैं बहुत से उसके अंदर। हमारी आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं अल्लामा इकबाल की ज़बानी कि ज़मीर लाला में रोशन
چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے. In the tulip's heart, brighten up the lamp of aspirations. Let every particle of the garden be a martyr to perseverance. If that happens, then that would lead to our ultimate goal of excellence, and through excellence, empowerment. اسی لیے میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے. یہ ویب سائٹس ہیں zakatindia.org اور info@zakatindia.org پہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الحمدللہ رب العالمین.